of learning science with Srishti. In our last three videos, we discussed about the three topics of life processes, that is nutrition, respiration and transportation. And now in this part, we are going to learn about excretion, which is the last topic of life processes. So without any further delay, let's get started with the video. So what basically is excretion? So excretion is a process of removal of harmful waste product from our body. So it is a process of removal of harmful waste product from our body. And what are these harmful waste product? Harmful waste product means undigested food particle, urea, uric acid, etc., excess of water and mineral. These all come in the harmful metabolic waste product which are not needed by our body. So it is the removal of those substances or those waste products which are not needed by our body and which is harmful for our body. So it is a process of removal of harmful metabolic waste from the body. Now let us begin with the excretory system of human beings. Here you can see in the diagram that this is the excretory system of human being. So what does the excretory system of human being include? So in my last video I had already told you guys about that in our human body for every function there is a specified system. हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है. लाइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के लिए डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पायरेशन के लिए रेस्पायरेटरी सिस्टम है, नर्वस कंट्रोल के लिए नर्वस सिस्टम है. सो हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है. ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. उसी तरीके से एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए आवर बॉडी हैज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स इन द excretion of harmful waste product. Okay, so this was the definition of excretory system. Now let us see that what does this excretory system includes. So in our excretory system there is a pair of kidney. Here you can see in the diagram that this is kidney. Kidney is a bean shaped structure organ. So this is a pair of kidney which is present in our body. Now we also have a urinary bladder in our excretory system. So this is urinary bladder. Here you can see in this diagram that this is urinary bladder. So our excretory system consists of a pair of kidney, a urinary bladder and a pair of ureter. This is a pair of ureter. Here you can see in this diagram that which attaches the kidney with the urinary bladder is the ureter, and then a urethra from which the ejection or the excretion of harmful waste product finally takes place. So this was the whole part of our excretory system, that is a pair of kidney, a urinary bladder, a pair of ureter and a urethra. So we have specific functions of all these structures. So what does kidney do? Kidney basically filters our blood. पहले blood को receive करती है और blood को filter करके ultimately pure blood हमारे body तक पहुँचाती है. Now then the urinary bladder, this bladder stores the harmful waste product like urine until we feel an urge to release that waste product. Okay, so urinary bladder will store that urine. Okay, now ureter, what does ureter do? Ureter takes this urine from this kidney to our urinary bladder for storage, and finally the urethra helps in the excretion of that waste product, final waste product, that is urine or any other feces matter. Okay, now let us begin with the process of excretion. So basically excretion में होता क्या है हम वो अभी यहाँ पे देखते हैं. तो सबसे पहले excretion में क्या होता है? Here you can see in this diagram that these renal arteries will bring the blood containing waste substances. These arteries will bring the blood containing the waste substances from our body into our kidney. Here you can see clearly in the diagram that these renal arteries are connected with our kidneys. So this renal artery will ultimately bring the waste containing blood from our body into the kidney for purification or filtration. So kidney में वो लेके आएगी filtration के लिए, and kidney का जो function है that it will filter blood. Kidney का basic function यही है that it will filter blood. उसमें से सारे waste product को निकाल देगी and ultimately जो pure blood है वो हमारे body तक पहुँच जाएगा. ठीक है. Now इसके बाद क्या होता है कि यूरिन जो होता है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द किडनी इटसेल्फ. यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी इटसेल्फ एंड दैट यूरिन इज ट्रांसफर्ड इनटू आवर यूरिनरी ब्लैडर विद द हेल्प ऑफ दीज यूरेटर्स, and then it is stored until we don't feel a urge to release that waste product, or until we don't feel a urge to release that urine. Okay, and finally the excretion of that urine occurs with the help of this urethra. So this was the whole process of excretion. Let me explain it for you again. First of all,
renal artery will bring in the blood containing waste substances to the kidney. Then our kidney will filter that blood. Ultimately, the urine is produced in our kidney, which passes through the ureter into the urinary bladder, where it is stored until we released it through urethra. ओके, सो ये पूरा प्रोसेस हो गया एक्सक्रीशन का कि किस तरीके से हमारे किडनी में जो वेस्ट कंटेनिंग ब्लड है वो आता है, वेस्ट कंटेनिंग ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है, उसके बाद जो वेस्ट है दैट इज़ यूरिन है वो किस तरीके से यूरेटर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है अनटिल एंड अनलेस वी फील अ अर्ज टू रिलीज दैट यूरिन और द वेस्ट प्रोडक्ट. ओके, now let us move on to the function of kidney. We have already discussed this part, but again, because this is an important point with exam point of view, so let us discuss it once again. So what is the function of kidney? So kidney removes waste product from the blood, that is urea, which is produced in the liver. Okay, so kidney का function यही है कि वो blood का filtration करेगा, purification करेगा, यानी कि जो blood में यूरिया होता है उसको separate करके यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से इजेक्ट आउट कर देगा. इसी को यही बेसिक फंक्शन होता है हमारे किडनी का. और वेयर इज़ द यूरिया प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी? सो यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर ऑफ आवर बॉडी. सो इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ किडनी, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. नाउ हाउ डज द किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड? किडनी में कुछ तो ऐसा होता होगा ना जिससे कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है हमारे ब्लड से. Obviously there must be some structural part of kidney which will be doing that function of blood purification. So that structural and the functional part of kidney is the nephron. Nephron क्या है? वो फिल्टरेशन यूनिट है, वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का जो कि ब्लड को प्योरीफाई करने में किडनी की मदद करती है. सो किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन. किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्टरेशन का प्रोसेस करते हैं, और यही फिल्टरेशन के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो अल्टीमेटली वेस्ट प्रोडक्ट से फ्री हो जाता है और प्योरीफाई हो जाता है. सो किडनी के पास बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड नेफ्रॉन, दैट इज़ वाई इट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड. ओके, so what is nephron? Nephron is a structural and functional unit of our kidneys. So anyone will ask you that what is the structural and functional unit of kidney, then you can easily say that nephrons are the structural and functional unit of kidney which helps in the filtration of blood. Now let us move on to the structure of nephron कि किस तरीके से जो हमारा नेफ्रॉन है वो ब्लड का प्योरीफिकेशन करता है, किस तरीके से वो होता है. सो लेट अस फॉर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या है. सो लेट अस मूव ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, देन आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ओके, so mechanism of urine formation basically involves 3 steps, that is glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion. Now let us study all these 3 steps with the help of this diagram, and then I'll explain it once again. Okay, so now here you can see in this diagram that first of all the very first structure of our nephron is the Bowman's capsule. This is the Bowman's capsule, and the Bowman's capsule has glomerulus inside it. This glomerulus inside it helps in the filtration of blood, or helps in the first step of the filtration. So here you can see these afferent arterioles or the vessel to renal arteries. As I said earlier also that renal arteries bring वेस्ट कंटेनिंग ब्लड फ्रॉम वो बॉडी टू आवर किडनीज. तो सबसे पहले जो ये रीनल आर्टरी है वो वेस्ट कंटेनिंग ब्लड को हमारे किडनी में लेके आती है. इसे हम एफरेंट आर्टरियोल भी बोलते हैं. तो ये एफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा, सबसे पहले वेस्ट कंटेनिंग ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को हमारे ग्लोमेरुलस तक लेके आएगा. ठीक है, इट विल कैरी द इम्प्योर ब्लड टूवर्ड्स अवर ग्लोमेरुलस. यहाँ पे लेके आएगा. दिस इज़ द ग्लोमेरुलस. नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड का क्या होता है, फिल्टरेशन होता है. ठीक है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली दिस blood will be carried away from these arterioles, and this is known as the efferent arteriole. So there are 2 different type of arterioles, that is afferent arteriole and efferent arterioles. There is a difference between the afferent and the efferent one. Afferent arteriole will bring the blood into the glomerulus, and the efferent arteriole will take the blood away from the glomerulus. तो यहाँ पे जब blood का filtration हो जाएगा, after that the filtered particle यानी जो filtered substances है, filtered blood है, वो यहाँ
यहाँ से अब्जॉर्व हो जाएगा इस बाउमेंस कैप्सूल में एंड अल्टीमेटली विल मूव इनटू द नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स. हियर यू कैन सी दिस ट्यूब्यूल्स. देयर आर टू ट्यूब्यूल्स इन आवर नेफ्रॉन, दैट इज द PCT, proximal convoluted tubule, and the DCT, that is the distal convoluted tubule. So proximal convoluted tubules will first of all take the filtrate off from the glomerulus और द बाउमेंस कैप्सूल. तो PCT का फंक्शन ये है कि वो जो फिल्टरेट है, जो कि प्योरीफाइड ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड है, उसको यहाँ से वो ले जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस. एंड नाउ DCT का फंक्शन ये है दैट इट इज़ कनेक्टेड टू आवर कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ से जो वो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं वो अल्टीमेटली हमारे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा तक पहुँचते हैं. तो ब्लड अब यहाँ तक ट्यूब्यूल्स तक आ गया एंड एज सुन एज द ब्लड एंटर इनटू द ट्यूब्यूल देन देयर इज अनदर फंक्शन विच इज हैपनिंग इनसाइड आवर नेफ्रॉन एंड दैट इज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. हियर यू कैन सी these structures, net-like structures. These structures are known as capillaries. We know that capillaries are nothing but the network of blood vessels. तो ये दो तरीके के ब्लड वेसल से मिलके बनी हुई है, वन फ्रॉम द रीनल आर्टरी एंड वन फ्रॉम द रीनल वेन. सो दोनों से मिलके ये जो है नेटवर्क बना हुआ है. तो यहाँ से क्या होता है कि जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं हमारे फिल्टरेट में, हमारे ब्लड में जो यूज़फुल, हमारे जो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जो बन गया, जो फिल्टरेट मिला हम लोग को, वो फिल्टरेट जो है यहाँ से फिर क्या होगा, इसमें से जो फिल्टरेट में जो एक्स्ट्रा यूज़फुल सब्सटेंसेस बचे हैं हमारे बॉडी के, जैसे कि Na+, K+, Na+, K+ आर द यूज़फुल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं Na+ एंड K+. सो दोज Na+, K+, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड. यू ऑल नो दैट ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर हाउ मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी एंड अमाइनो एसिड आर अल्टीमेट यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. इसको तो हम एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे ना. जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे बॉडी की, यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर नॉट एक्सक्रीटेड आउट, दे शुड बी रीअब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी. सो इस कैपिलरीज के थ्रू, इस फिल्टरेट में से, जो कि फिल्टरेट प्रोड्यूस हुआ है ब्लड में से, कचरा जो प्रोड्यूस हुआ है, उस कचरे में से हम यूजफुल सब्सटेंसेस को इस कैपिलरीज के थ्रू अब्जॉर्व कर लेते हैं, रीअब्जॉर्व कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? रीअब्जॉर्व कर लेते हैं. उसके बाद जो वो बच जाता है, दैट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट विच मूव्स विद द help of these tubules again into the collecting duct, and ultimately these collecting ducts are connected to ureter, then urinary bladder, and ultimately will be excreted out through urethra. So this was the whole process. तो यहाँ पे बेसिकली तीन चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि मैंने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में बताया that there are 3 steps, that is the glomerular filtration, tubular reabsorption and the secretion. So first of all, the name glomerular filtration itself suggests कि glomerulus में filtration हो रहा है. तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि efferent arteriole के थ्रू जो impure blood है वो हमारे बॉडी, यहाँ पे impure blood आ गया बाउमेंस कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में फिल्टरेशन हो गया एंड अल्टीमेटली जो ये है क्या है, प्योर ब्लड है. प्योर ब्लड कनेक्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन्स एंड दीज आर गोइंग आउट टू आवर बॉडी. दिस इज द प्योर ब्लड विच हैज़ ऑल द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस. और जो उसमें से बचे हुए पार्टिकल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, विल गो इनटू द बाउमेंस कैप्सूल इनटू दीज ट्यूब्यूल्स. हियर द रीअब्जॉर्प्शन विल अकर, दैट इज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स Na+, K+ एंड ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर रीअब्जॉर्ब, ताकि वो एक्सक्रीट आउट ना हो जाए, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. एंड अल्टीमेटली द सिक्रेशन विल अकर. सिक्रेशन मतलब कि यहाँ से जो ट्यूब्यूल से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कलेक्टिंग डक्ट तक वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है, ताकि उसका प्रॉपरली फिर यूरेथ्रा के थ्रू इजेक्शन हो पाए. सो these are the 3 parts of our mechanism of urine formation, that is the glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion. So what is glomerular filtration? So blood is filtered from glomerulus into the Bowman's capsule of nephron, जैसे कि मैंने बताया, and this filtrate then passes through the tubules of nephron. नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से पास करेगा PCT के थ्रू, ठीक है. एंड नाउ द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन विल अकर. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्टरेट लाइक Na+, K+, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा आर रीअब्जॉर्ब बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड. आई वाज सेइंग दिस ओनली कि यहाँ पे जो कैपिलरीज है, हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट देयर आर द कैपिलरीज जिसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है. ये कैपिलरीज यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट है, ताकि जो ब्लड है उसमें अल्टीमेटली जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी से निकल ना जाए, यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन ना हो जाए. ओके,
सो वहाँ से कैपिलरीज में यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब एंड अल्टीमेटली द सिक्रेशन अकर्स. यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. सो यहाँ पे हम इस ट्यूब्यूल की बात करते हैं, दैट इज़ द DCT और द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम दैट ये जो DCT है इट इज़ कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि अल्टीमेटली क्या है, यूरेटर है. यूरेटर से ही जो हमारा यूरिन है या फिर यूरिया है या फिर एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर मिनरल जो भी है हमारे बॉडी का विच शुड बी रिमूव्ड, देन गोज इनटू द यूरेथ्रा फॉर इजेशन और एक्सक्रीशन. So this was the whole mechanism of urine formation. I hope you guys understood this. ये बहुत ही important है from both point of view because these are usually asked in the exam. So आपको proper सारे processes को explain करना पड़ेगा. Now let us move on to the excretion in plant. तो plant जो है वो हमारी तरह complex organisms नहीं हैं. They are not that complex like human beings. So इनमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमने ये देखा कि इनमें न्यूट्रिशन भी सिंपल होता है, इसमें रेस्पिरेशन भी सिंपली हो जाता है, इनमें ट्रांसपोर्टेशन भी सिंपल वे में होता है, अल्टीमेटली जो इनका एक्सक्रीशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. हमने कई बार देखा होगा जो लीव्स होती हैं उनमें से पत्तियाँ झड़ जाती हैं. सो पत्तियाँ जब झड़ती है ना, तो दे नॉट ओनली जस्ट शेड ऑफ बिकॉज दे हैव बिकम ओल्ड और दे आर नॉट यूजफुल, दे जस्ट शेड ऑफ बिकॉज दे मस्ट बी कंटेनिंग सम वेस्ट मटीरियल एज वेल, जैसे कि गम हो गया, रेजिन्स हो गया. दे आर स्टोर्ड इन दिस लीव्स एंड दीज लीव्स अल्टीमेटली फॉल एंड जैसे ये लीव फॉल करती है तो हमारे प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल है वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है. सो प्लांट यूजेस वैरायटी ऑफ टेक्निक टू गेट रीड ऑफ these waste materials. Waste materials may be stored in the cell vacuoles or as gum and resin which is removed in the falling leaves. So leaves जब सेट करती हैं तो उनमें वेस्ट मटेरियल भी प्लांट के रिमूव हो जाते हैं एंड वेस्ट मटेरियल may be stored in leaves, bark etc. which fall off from the plant. So प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है वो इसीलिए इन सारे पार्ट्स में होता है जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाता है, शेड हो जाता है, फॉल हो जाता है. Also, the oxygen is released during photosynthesis and excess water by transpiration. प्लांट में जो स्पेसिफिक अपने आप स्पेसिफिक चीज़ें होती है, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाता है. सो ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट, सो इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड अल्टीमेटली द एक्सेस वाटर इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन. इन आवर लास्ट यूनिट ओनली वी स्टडीड अबाउट ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. वेपर्स की फॉर्म में जो एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट से रिमूव हो जाता है. उस एक्सेस वाटर के रिमूवल से अल्टीमेटली जो प्लांट का टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड रहता है and it also helps in the upward movement of water and minerals. So this was all about the excretion in plants and in human beings. I hope you guys understood everything really well because this was all very much important and this was the last part of life processes. I hope you guys understood this chapter really nicely. If you have not watched the other 3 videos yet, I'll be adding those links as well in the description box. You can go and watch it out for more clarity. And also अगर आपको लगता है कि मैं किसी तरीके से अपने वीडियो में इम्प्रूव कर सकती हूँ, so please comment down below and let me know. I'll definitely try to improve myself. धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं definitely इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. And if you understood everything in this video, then please like, share and subscribe to my channel. Okay, bye bye. See you in the next video.